So, hi guys, we are having Priyanka with us. She's a Helio Life certified coach, and we would be knowing a lot of things that how to control your emotions and many things. Okay, and hope you're gonna enjoy the podcast. She's gonna give a lot of strategy because she's an international certified coach, so she would be knowing a lot of strategies. So, first, we would love to know your Priyanka how you started your journey. Okay. First of all, I'm very grateful that you invited me here for this podcast. Thank you so much. And thank you to everybody who's listening. My journey. Okay. So if I share about my Heal Your Life journey, I first started as a student of personal development, which always sort of called me. I was always interested in how changing my mindset Hmm. and loving myself more and working on my limiting beliefs of my childhood can shape my life. And that's how my journey started. It started with a little book, a red colored book, which is You Can Heal Your Life by my late mentor, Louise Hay. And I came across it around 6 years ago and read it. And then around 2, 3 years ago, I came back to that book again. And then working on the principles of the book and all of that helped me start my journey. And then I got licensed as a workshop leader last year, and finally as a Helio Life coach also last year, for which I'm very grateful. Okay, that's amazing. Congratulations. So, how they can get a certificate? You got a certificate. So, can you just tell us the process? Okay, so the certification, it's not exactly certification, it is a workshop leading license Okay, and the okay, license to practice as a coach. So I got it from Heart Inspired Presentations, which is an international body, okay. which is, yeah. Okay, Priyanka, justically, we are connected to a lot of people, okay? But something happened due to circumstances. We broke it out, and what happened? We don't concentrate on ourselves. We are focused on them to heal our happiness. So, how we can have a great version of ourselves? What are the steps to have the best version of ourselves? Okay. I feel कि steps नहीं है to have the best version of ourselves, Okay, okay. but the awareness that you are the best version of yourself, Hmm. and for that you need to remove things. Remove things जैसे कि it could be negative thoughts, negative beliefs. So when you remove these things from your life, the best version of yourself, which is already there within you, Hmm. comes out more clearly. So I believe that we are all beings of love and light. And what stops us is, जो हमें hold कर रहा है एक दूसरे से. It Sure, could sure. be guilt, it could be blame, it could be the negative beliefs, all of these things. So when we get past them and consciously remove them, Hmm. then we let the best version of ourselves shine. Okay, how to remove that? It takes time. Yeah, so I think that the first step to change anything is to be aware of it. तो पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हमें हमारे बेस्ट सेल्फ बनने से रोक क्या रहा है. Okay, एंड जो okay. भी चीजें हमें रोकती है वो बेसिकली थॉट्स होते हैं. Yeah, yeah, बिकॉज sure. वी आर थिंकिंग ऑल द टाइम, वी आर थिंकिंग थ्रू आउट द डे. तो फर्स्ट स्टेप इज बिकमिंग अवेयर ऑफ दोज थॉट्स कि हम लोग पूरा दिन में सोच क्या रहे हैं, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट द एंटायर डे. Hmm. एंड देन क्या वो थॉट्स हेल्प कर रहे हैं मुझे किसी चीज में, या वो थॉट्स मेरी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं तो एंड मुझे दूसरों से कनेक्ट करने में रोक रहे हैं. तो मेरे को आपसे ये पूछना था कि जैसे जर्नलाइजिंग बहुत हेल्प करता है, अफर्मेशन भी बहुत हेल्प करता है इसमें. हम्म. तो दोनों अलग अलग चीजें हैं. पहले एफर्मेशंस पर आते हैं. हम्म. तो जब हम एक थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन थॉट पैटर्न है कि आई एम नॉट गुड इनफ, जिससे कि बहुत सारा फियर आता है हमारे अंदर. राइट, मेरा बेस्ट सेल्फ वो होगा जो ऑप्टिमली एक तरह से काम कर रहा है, बट आई एम नॉट गुड इनफ मुझे उस लेवल को एक्सेस ही नहीं करने दे रहा है उस बेस्ट सेल्फ को. तो एफर्मेशंस क्या करते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं. ओके. तो जैसे कि मेरा नेगेटिव थॉट पैटर्न है कि अगर आई एम नॉट गुड इनफ, बट ये मेरे सबकॉन्शियस में है, इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसका एक ऑपोजिट थॉट पैटर्न कॉन्शियसली इंस्टिल कर सकती हूँ. इट कैन बी कि आई एम इनफ.
तो दैट इज एन एफर्मेशन। तो एफर्मेशन दो चीजें करती हैं। एफर्मेशन या तो हमें किसी चीज को अपनी लाइफ में लाने में हेल्प करती है, या फिर अपनी लाइफ से किसी भी चीज को रिमूव करने में हेल्प करती है, एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। दैट ओके इज द फंक्शन ऑफ एफर्मेशन। ओके ओके। एंड व्हेन डन रिपीटेडली दे बिकम ट्रू फॉर अस। तो हमारे माइंड को फर्क नहीं पता होता है कि क्या रियल है, क्या इमेजिनरी, क्या है। इट वर्क्स ऑन ऑटो सजेशन। जो भी चीज हम खुद को बार बार सजेस्ट करेंगे दैट विल बिकम ट्रू फॉर अस। दैट इज एग्जैक्टली हाउ एफर्मेशंस वर्क। पर मेरे को काफी मैंने यूट्यूब में देखा है कि अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करते अगर हम लोग डेली भी करें। जैसे तो अगर आपका बहुत लोग yes, मैनिफेस्ट करते हैं ना कि हमें यहाँ जॉब चाहिए, लाइफ पार्टनर वैसा चाहिए, और भी बहुत कुछ है। जैसे टीवी फ्रिज नहीं चल रही थी, ये बेसिकली रियलिटी में आते हैं कि एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, पर मैनिफेस्ट करते तो वो होता नहीं है। ओके। ठीक है, I'll answer one by one. This is a combination of questions I feel. होता नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपका बिलीफ है कि affirmations don't work, then they will definitely not work for you. ओह। तो पावर ऑफ बिलीफ यहाँ पर आ रहा है, जिसकी मैं पहले भी बात करी थी, बिलीफ्स की। अगर आप पहले से ही आपके माइंड में है कि manifestations don't work, then it will also become true for you. ओह। Then manifestation won't come true for you. ठीक ओके। है। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज, जैसे कि अभी आई एम 29 years old, ऑल राइट। अगर मैंने जैसे चाइल्डहुड से सीखा है, मेरा इम्प्रिंटिंग है, मेरा नेगेटिव बिलीफ है कि आई एम नॉट गुड इनफ, एंड इट इज रिपीटिंग इन माई माइंड। और फिर अगर मैं एक एफर्मेशन एक दिन में सुबह उठ के करती हूँ, आई एम इनफ, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिरेकल हो जाए। कुछ केसेस में इट हैपेंस, इफ यू से इट विद बिलीव कि आई एम इनफ, तो वो एफर्मेशन एक बार करने से भी इट कम्स ट्रू, इफ यू आर सपोर्टिंग इट विद द पावर ऑफ बिलीफ। बट यूजुअली क्या होता है कि एक बार तो सुबह एफर्मेशन कर लिया आई एम इनफ, बट दिन में 50 बार मैंने खुद को बोल दिया कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो अभी कौन सा एफर्मेशन सच हो रहा है? तो आई एम नॉट गुड इनफ वाला एफर्मेशन सच हो रहा है। अच्छा। एफर्मेशन सिर्फ वो नहीं है जो मैं खुद को बोल रही हूँ, हमारा माइंड 24/7 एफर्मेशन कर रहा है। बिकॉज हमारे थॉट्स तो चल ही रहे हैं, नॉट 24/7, मतलब फॉर द टाइम दैट यू आर अवेक, तो वो थॉट्स चल रहे हैं ऑटोमेटिकली। सो दोज आर ऑल्सो एफर्मेशंस। अभी जैसे सपोज एक पर्सन ए है, आपने रिलेशनशिप की बात करी, ये एफर्मेशन है कि आई हैव द परफेक्ट पार्टनर। बट हो सकता है कि इंटरनल बिलीफ हो कि आई डोंट डिजर्व अ गुड पार्टनर। तो एफर्मेशन एक बार करी आपने दिन में, और वो नेगेटिव बिलीफ कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? जो बार बार चल रहा है। तो दैट विल कम ट्रू फॉर यू। अच्छा। तो इसका मतलब कि एफर्मेशन में भी रेपिटेशन चाहिए, फेथ चाहिए, ट्रस्ट चाहिए ओके। कि यस दिस एफर्मेशन इज कमिंग ट्रू फॉर मी। तो पर देखो, हम लोग जितना भी अच्छा गुड थॉट सोच ले, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जरूर आएंगे, नो डाउट। अगर यस, कोई जो फोकस नहीं होता है उस पे ये सब नेगेटिव अफर्मेशंस आते हैं। एम आई करेक्ट? ओके। जो हमारा बिलीफ है ना, वो ऑटोमेटिकली प्ले करता है। हम्म। जो हमारा बिलीफ है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंटेड है, जो हमने सीखा है अपने चाइल्डहुड में, हम्म। वो उस बिलीफ को चेंज करना है। बिकॉज हमारी लाइफ उन बिलीफ्स के बेसिस पर फंक्शन कर रही है, वर्कआउट प्ले आउट कर रही है, राइट। So why it's important basically, stay calm instead of reacting to small things। जैसे हम लोग एक छोटे छोटे बात में रिएक्ट कर लेते हैं, पर हमें काम होना चाहिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, काम होना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सपोज आई एम एंग्री इन द मॉर्निंग ओवर अ स्मॉल थिंग, दैट इज ऑल्सो एन एफर्मेशन। जो आप फीलिंग्स बाहर सेंड आउट कर रहे हो, उस एंगर की, उस शाउटिंग की, वो भी एफर्मेशन है, फिर वो भी मैनिफेस्ट होगा। देन यू विल फेस मोर सिचुएशंस वेयर यू विल बी एंग्री। आप समझ रहे हो? वट एवर यू आर गिविंग आउट, एफर्मेशन इज एक्चुअली एन इंटेंट। तो ये भी आपका इंटेंट बाहर जा रहा है कि मेरा इंटेंट है गुस्सा,
तो देन दैट विल ऑल्सो रिपीट, देन यू विल हैव मोर ऑफ इट, फिर वो आता रहेगा बार बार। हम्म, ठीक है, इसीलिए काम होने से कामनेस की एनर्जी बाहर जा रही है, and ओके that energy comes back as more experiences of being calm. And काम रहने से हमें ये पता चलता है कि हमें एक्चुअली हम रिस्पॉन्ड कैसे करें सिचुएशन को, उसको कंस्ट्रक्टिव कैसे बनाएं। हम्म मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जस्ट रिएक्ट कर देते हैं, हम अवेयर नहीं हो रही है सिचुएशन क्या है, हम ट्रिगर हो क्यों रहे हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम आया है उसको कैसे हैंडल करना है। तो व्हेन वी आर रिएक्टिंग टू इट हम्म, इंस्टेंटली, तो हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, हम जस्ट एक रिएक्ट कर रहे हैं। बट व्हेन वी आर रिस्पॉन्डिंग, बीइंग काम, व्हेन वी आर टेकिंग 2 minutes छोड़ो, व्हेन वी आर टेकिंग 30 seconds टू फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग एंड बी मोर काम एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड and how it can be made better, then we are able to make better decisions. When you are calm, you can make better decisions. okay. So basically, whenever we are reacting, okay, so how we can control our emotion? जैसे हमें बहुत बहुत गुस्सा है मेरे पे, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखिए, अब हम लोग को गुस्सा आ रहा है तो उसको भी तो कंट्रोल करना होगा ना, टाइम लेता है, कैसे करें उसको। गुस्सा तो भी तो गुस्से को आप एक तरह से इमोशन हो रहा है हम लोग के लिए। यस, हम्म तो जो ज्यादातर इमोशंस होते हैं ना, जब आप उनको एक बार फील कर लेते हो, प्रोसेस कर लेते हो, वो रिलीज हो जाते हैं। हम्म ठीक है, तो आपको कुछ कुछ सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं अपने इमोशंस को वहां पर रहने देने की। उनको ऑब्जर्व करो, वो इमोशन कहाँ पर है। ठीक है, जैसे गुस्सा आ रहा है तो यहाँ पर फोरहेड पे हीट फील हो रहा है, लेट इट बी थोड़ा सा। तो जस्ट ऑब्जर्विंग कि दिस गुस्सा इज हियर, नो दैट इट विल पास। जो इमोशंस होते हैं ना, हम्म वो 1 मिनट से ज्यादा इमोशन नहीं रहता है, दैट इमोशन विल पास। इमोशंस चाहते हैं कि हम उन्हें फील करें एंड देन रिलीज करें। जो आप ज्यादा गुस्से की बात कर रहे हो, कई बार क्या होता है, हम इस प्रेजेंट सिचुएशन पर गुस्सा नहीं है, हम ऐसी प्रेजेंट सिचुएशन से हमें जो पास्ट सिचुएशन याद आ रही है, हम उस पर गुस्सा है। तो हम इस सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करते, हमारे अंदर जो उसका ट्रिगर है, वो हमारे अंदर जिस हर्ट पार्ट को ट्रिगर कर रहा है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ वाले बिलीफ पर आते हैं। अगर मेरा बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है, मुझे फिर चाइल्डहुड से वैसे ही एक्सपीरियंसेस मैंने एक्सपीरियंस करे, बिकॉज मेरा तो बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ। तो अब जब मेरे बॉस ने मेरी थोड़ी सी गलती निकाल दी, तो क्योंकि मेरा बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ, तो मुझे इतना गुस्सा आएगा कि यार आई एम नॉट गुड इनफ। देन आई विल रिएक्ट विद लॉट ऑफ गुस्सा, जैसे आपने बोला बहुत गुस्सा आ रहा है। बट अगर मेरा ऐसा कोई बिलीफ ही नहीं है, तो रिस्पॉन्ड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे इतना गुस्सा नहीं आएगा। देन आई विल सी दैट मिस्टेक एज अ मिस्टेक, कि बॉस ने बोला ये एक मिस्टेक है। आई विल रिस्पॉन्ड एंड आई विल से ओके, आई विल वर्क ऑन दिस एंड गेट इट डन। एंड अगर ऐसा चाइल्डहुड बिलीफ है भी, अगर ये बिलीफ हमारे अंदर है भी, देन ऑल्सो पॉज। गुस्सा आ रहा है, रिएक्ट करने से पहले पॉज करो, 30 सेकेंड ब्रीद करके देखो, क्या मुझे इस सिचुएशन से गुस्सा आ रहा है, या मुझे अपने पास्ट के सिचुएशन से गुस्सा आ रहा है। क्या मैं इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, कि मेरा जो अंदर का हर्ट सेल्फ है वो पास्ट सिचुएशंस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं पास्ट एंगर और पास्ट का हर्ट उसको स्पिल आउट कर रही हूँ, कि मैं इस सिचुएशन से डील कर रही हूँ। सो अब ये हो गया। अब हम लोग को अगर पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस, तो वो मुझे इसलिए लगता है इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वर्क, जब हम पर्सनल ग्रोथ या वर्क करते हैं, तो फॉर मी इट मीन्स चेंजिंग योर थॉट्स। एंड अभी 29 ईयर्स से मैं कुछ थॉट्स बार बार सोच रही हूँ अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। तो उनको बदलने में कुछ वक्त लगेगा, राइट। अगर मैं आज से स्टार्ट करूँ आई एम केपेबल या आई एम इनफ, कुछ टाइम लगेगा मुझे उसको इंटरनलाइज करने के लिए, ओके क्योंकि मेरे पेरेंटिंग टेप्स में, मेरे लाइफ की सिचुएशंस में बार बार प्ले हुआ है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। सेम थिंग एज आई शेयर्ड इन एफर्मेशंस, वो रेपिटेशन से काम करती हैं, बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ को चेंज कर रही हैं।
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतने सारे सालों में जो सीखा है उसको अनलर्न करें, तो थोड़ा पेशेंस और थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ में करें, देन वी विल बी एबल टू मेक लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस ऑल्सो। सो बेसिकली जैसे 2025 में बहुत लोग था कि एक्सरसाइज करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च तक सब अच्छा से एक्सरसाइज करता है, ठीक है। हम्म। अप्रैल मई में ये जो होता है, ये जो पैशन है वो खत्म हो जाता है। हमने काफी रील्स में भी देखा है कि हम्म। जनवरी फरवरी तक एक्सरसाइज काफी है, अगस्त तक देखते जिम जो है वो खाली हो जाता है। तो हम्म। वो जो हम लोग का जो नया हैबिट है उसको हम अपने पार्ट ऑफ लाइफ में कैसे बनाए उसको बेसिकली। आई कांट हियर यू। नाउ यू कैन हियर मी। या। या। बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग दैट एक एग्जांपल है जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम रील्स में ही देखा था जनवरी में कि लोगों ने सोचा कि इस बार हम लोग को वर्कआउट करना है, फिट होना है, पतला होना है, मोटा होना है, जो भी होना है वो नहीं पता, ठीक है। पर हम लोग देखते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च तक सब चलता है अच्छा से, पर जब अगस्त आता है तो जिम खाली हो जाता है। हम्म। तो ये जो तो न्यू इसका हैबिट है उसको हम लोग पार्ट ऑफ लाइफ कैसे बनाए। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो बी वेरी पेशेंट विद योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके पीछे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। जब आपका रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन ग्रेटर होगा देन द एफर्ट थिंग, तब यू विल बी एबल टू डू। जैसे कैसे होता है ना कि 2 महीने में लड़की की शादी होती है, उसको उस लहंगा में फिट होना है। अब वो कंसिस्टेंटली 2 महीने जिम जाती है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे रिवॉर्ड है। और जब तक हमें रिवॉर्ड एंड कॉस्ट का नहीं पता, कॉस्ट ये होता है अगर मैंने ये एक्शन नहीं किया तो मुझे क्या नुकसान होगा, और रिवॉर्ड होता है अगर मैंने ये एक्शन किया तब मुझे क्या मिलेगा। तो रिवॉर्ड एंड कॉस्ट के बीच का जो वो है बैलेंस है, जब तक वो नहीं है हमारे पास तब तक हम सस्टेन नहीं कर सकते चीजों को। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको हम लोग अगर आज 1 घंटा नहीं हो रहा तो आधा घंटा करें, आधा घंटा नहीं हो रहा तो 15 मिनट करें। यस, हम हैबिट सेटिंग करें। ऑल्सो हमारी बॉडी ना रूटीन्स एंड रिदम्स को अच्छे से समझती है। जब कोई रूटीन एंड रिदम होता है तो हम नेचुरली किसी चीज को कर पाते हैं। अच्छा, कैसे ओल्ड पीपल आप देखोगे, कुछ लोगों की ओल्ड कुछ मतलब मोस्टली ओल्ड पीपल जिनको मैंने देखा है, मोस्टली 5 बजे नींद खुल जाती है। और हम लोग की मोस्टली नहीं किसी की खुलती। 6 बजे, मोस्टली 6 बजे नींद खुल जाती है। वाई? बिकॉज दैट हैज बिकम अ रूटीन इन देयर लाइफ। वो एक रिदम है, नेचुरली फ्लो आ गया है। तो जब आप एक फ्लो बना लेते हो, फ्लो मतलब कि 15 मिनट शाम को रोज 6 बजे सेम टाइम पर कोई चीज कर रहे हो, उसका फ्लो बन जाएगा। अब कैसे हमारी मम्मियां सुबह उठते साथ पहले चाय बनाएंगी, उसके लिए उनको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनका पार्ट ऑफ रूटीन है, वो रिदम है। उनकी बॉडी फ्लो ऐसे कर रही है कि उठे चले गए, उठे चले गए। ऑल्सो ये उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में सीख लिया है कि ऐसे ही फ्लो करना है, लाइफ ऐसे ही जीनी है। इसीलिए चेंजेस करना इनिशियली बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक वे ऑफ लाइफ चलता आ रहा है, आपने वो सीखा है। एंड ऑल्सो इसीलिए अपने थॉट्स को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप थॉट्स को चेंज करोगे तो लाइफ चेंज होगी। अच्छा, मैं आपको ये और हम लोग बहुत लोग होते हैं जैसे कि हमें भी बचपन में जो भी मजाक कर हम लोग उसको पर्सनली ले लेते, ठीक है। तो इसको हम्म। हम लोग को पर्सनली क्यों ले लेते थे और क्यों हम लोग को उससे उतना ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे लोग का जो थॉट है, दूसरे लोग का जो हमारे तरफ पर्सपेक्टिव है, वो हमें काफी कैप्चर कर जाता है। हम्म। हमें लगता है कि अरे हाँ, उसने हमें बोला कि हम बेकार है तो हम बेकार ही है। अच्छा, ओके। ये इसीलिए होता है जब हम 5 साल तक होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम हर चीज को सच मानते हैं। अगर मुझे मेरी लाइफ के पहले 5 साल मुझे बोला गया है कि तुम बेवकूफ हो, हम्म, तो ट्रस्ट मी आई विल ग्रो अप टू बी एन इंडिविजुअल जो हर चीज में यही बिलीव करेगी कि मैं बेवकूफ हूँ। अब होता क्या है ना, दूसरों के उससे हम तब अफेक्ट होते हैं जब हमें अपने बारे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अंदर से नहीं। अगर मुझे खुद को नहीं पता कि आई एम वंडरफुल, अगर मैंने खुद को ये चीजें नहीं सिखाई कि आई एम वंडरफुल, मैंने ये सीखी नहीं बचपन में, या बचपन के बाद मैंने कॉन्शियस एफर्ट से नहीं सीखा कि आई एम वंडरफुल, तो जब दूसरा बोलेगा आई एम कि तुम बेवकूफ हो, तो आई विल बिलीव इट टू बी ट्रू कि हाँ यही सच होगा, और फिर उस सच से हर्ट होता है।
है ना। अब इसमें एक एग्जाम्पल था, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, काफी जगह यूज भी करते हैं। सपोज कोई रूम में आया हम्म, और किसी ने मुझे बोल दिया कि यू आर एन एलिफेंट। अब अगर मैं एलिफेंट, अगर मुझे अंदर से नहीं लगता मैं एलिफेंट नहीं हूँ, तो मैं उसको पर्सनली नहीं लूंगी। आई विल लाइक, अरे ये तो गलत बोल रहा है, ये तो सच हो ही नहीं सकता, आई एम नॉट एन एलिफेंट। बट अगर मुझे अंदर से ही लग रहा है कि आई एम सो फैट, आई एम लाइक एन एलिफेंट एलिफेंट, तब वो मुझे ज्यादा हर्ट करेगा। तो हम जब अपने बारे में, अपने अंदर हमारे पॉजिटिविटी नहीं है, हम अपने बारे में फील गुड नहीं कर रहे हैं, तब हमें दूसरों की ओपिनियन ज्यादा हर्ट करते हैं। ओके। अगर हम सेल्फ अश्योर्ड है, अगर मैं सेल्फ अश्योर्ड हूँ कि आई एम गुड, मुझे कॉन्फिडेंस है, फिर मुझे दूसरों की चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज देन आई फील, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, मैं तो एलिफेंट हूँ ही नहीं, ये किसी और एलिफेंट से बात कर रहे हैं। फिर ऐसे हम मजाक में भी डाल देते हैं, कौन एलिफेंट, आई डोंट नो, ऐसे करके। और जब वो चीज रेजोनेट हो रही है अंदर, तब हमें लगता है हाँ यही सच होगा, यही ऐसे ही है। अच्छा, जैसे हम लोग का जो माइंडसेट होता है वो काफी, जो प्रोसेस उसका बहुत बेकार होता है, जैसे बहुत लोग को। तो हम लोग का जो माइंडसेट है वो गुड क्यों, अच्छा कैसे रखना चाहिए, बैड। बहुत लोग का माइंडसेट जो होता है ना कि स्ट्रांग नहीं होता, वीक क्यों होता है माइंडसेट? अच्छा, आप मुझे इसका एक्सप्लेन करोगे, वीक माइंडसेट आप, कि आपका इससे क्या मतलब है? बेसिकली मैं बता रही हूँ, जैसे कि हम लोग, देखिए हम लोग को भी कुछ भी अचीव करना है, उसका माइंडसेट हम्म स्ट्रांग होना हम्म चाहिए। बैड नहीं हम्म होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। माइंडसेट हम्म, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। समझ गई मैं। ओके, तो आपका वीक से ये मतलब है। ओके, तो जो हम 5 इयर्स की एज तक सीखते हैं ना, हम उन्हीं बिलीफ से ऑपरेट करते हैं, अनलेस वी वर्क टू चेंज देम। तो अगर आपने 5 साल की उम्र में, जैसे कोई 4 साल का छोटा बच्चा है, वो एक ड्राइंग कर रहा है, और उसकी मम्मी ने उसको बोल दिया ये तो अच्छा नहीं है, तुमने अच्छा नहीं बनाया है, तो चाइल्ड उसको एज अ फेलियर भी इंटरनलाइज कर सकता है कि यार ये तो मेरा फेलियर हो गया, मैंने अच्छा नहीं बनाया, मैंने अच्छा नहीं किया। और जब हम ये चीजें बार बार सीखते हैं, तो हम इनको अपने माइंडसेट में, हम इनको, इन चीजों को फीड कर रहे हैं, क्योंकि एज अ चाइल्ड तो हमें पता ही नहीं इनसे कैसे बचना है। वी आर एक्सेप्टिंग इट एज ट्रू। तो हमें अब उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको बार बार लग रहा है, जैसे अगर आपको, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, आपका बिलीफ हो सकता है कि आई एम अ फेलियर, तो आपको बाय कांस्टेंट रेपिटेशन उस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, बाय थिंकिंग बेटर थॉट्स। थिंकिंग बेटर थॉट्स की, इट वुड बी आई डिजर्व टू बी सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्शियसली फीड करनी पड़ेंगी। यस। एंड माइंडसेट कैन बी चेंज्ड विद रेपिटेशन, इट कैन बी चेंज्ड। एंड जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी एक्सटर्नल लाइफ की सिचुएशंस चेंज होंगी, you will become more successful. That has to happen. Okay, basically, so reading books is also very important to have a great mindset, good mindset. मैं Reading, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि रीडिंग बुक्स से ना स्ट्रेस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मैं एक रिसर्च hmm, मैंने पढ़ा था कि रीडिंग बुक्स बहुत अच्छा है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो उसको कम सुनिए, आप बुक्स को रीड करो। आप जो रीड करते हो ना, आप जो बेसिकली बुक्स को जो रीड करते हो, आप जो वो रीड कर रहे हो वो आपके दिमाग में आ रहा है, और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। hmm, मैंने ये कहीं पढ़ा था yes. रिसर्च में। Hmm. तो प्रत्याशा, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो भी एक तरह से थॉट ही है। हम्म। अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ आई एम सक्सेसफुल, तो दैट इज अ थॉट, मेरा यस। पर्सपेक्टिव। हम्म। अगर मैं सोच रही हूँ आई एम अ फेलियर, दैट इज ऑल्सो अ थॉट। हम्म। तो आई हर्ड कि आप कह रहे हो कि बुक्स की हेल्प से हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज हाँ, बुक्स में अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, तो हम उनको इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। यस। तो इस पर ये इस पर डिपेंड करता है कि एक तो आप कैसी बुक्स पढ़ रहे हो, उन पर क्या लिखा है। हम्म। अगर उसमें आपको मोटिवेटिंग और अच्छी चीजें लिखी हैं, एंड आप उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपनी लाइफ में, जैसे कि एक बुक में लिखा है कि यू आर इनफ, और इसको मैंने इंटरनलाइज कर लिया, मैंने रोज रिपीट करा अपने आप को, हाँ आई एम इनफ, आई एम इनफ। किसी बुक में लिखा है यू कैन सक्सीड, मैंने सीख लिया हाँ आई कैन सक्सीड, मैंने रोज खुद को रिपीट किया आई कैन सक्सीड। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प माई माइंड, इट विल हेल्प चेंज माई माइंड सेट। बुक्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और पॉडकास्ट भी मैंने काफी सुना है कि
हाँ, मैंने पॉडकास्ट जो है वो बहुत लंबा होता है, तो मैंने काफी पॉडकास्ट सुना है कि वो भी बहुत इम्प्लीमेंट, वो भी हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं। बिकॉज आप उस चीज में अगर लॉन्ग इनफ हो, आप हाँ। उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, हम्म। तो वो डेफिनेटली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड ऑल्सो यू आर ओपन टू इट, तभी आप उतनी देर तक सुन रहे हो। हर पॉडकास्ट को आप एंड तक नहीं सुनते हो। तो हाँ। एक तो आप ओपन टू इट हो, कुछ सीखने के लिए और ओपन, एंड देन यू लर्न दोज थिंग्स, यू पुट हम्म। देम एंड यू चेंज योर थॉट्स कि अब मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचूंगी। देन थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट और द बुक, it is because of implementing what is taught यस। that you are making progress. ओके, सो कमिंग टू 2-3 क्वेश्चंस मोर। लाइफ जो है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, कभी टफ सिचुएशन होते हैं, Hmm. कभी गुड सिचुएशन होते हैं। तो वो सब सिचुएशन, ठीक है, गुड सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पर जब Hmm. टफेस्ट सिचुएशन आता है उसको हम लोग कैसे हैंडल करना होगा? Okay. So whenever you are dealing with a situation, हम्म। you are dealing with your thoughts. हम्म। आपके उस सिचुएशन के बारे में थॉट्स क्या हैं? या जैसे आज बारिश हो गई, अब या तो मेरा थॉट हो सकता है कि यार आज तो दिन खराब हो गया, तो सड़क पे पानी है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती। ये मेरे थॉट्स हो गए। हम्म। इन थॉट्स को चेंज करके आई कुड गेट बेटर थॉट्स। यार आज तो बारिश हो गई, हम्म। आज तो प्लांट्स में बहुत पानी गया है, हम्म। वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। हम्म। आज तो चाय बनाएंगे, आज तो घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओह। So the problem is not the real problem. हम्म। The real problem is your thoughts and how you are perceiving. Our perception is also a thought only ना, हम क्या उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। And yes, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम्म। बट हम उनसे बेटर डील कर सकते हैं अगर हम उनके बारे में बेटर थॉट्स सोचें। जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, ब्रेकअप तो हो गया, एक प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रीफ है, लोनलीनेस है, सैड है। हम्म। दूसरी प्रॉब्लम हम अपने ऊपर तब लाते हैं जब हम बोलते हैं मैं तो बेकार हूँ, अब मुझे कोई नहीं मिलेगा, अब मेरा अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, मेरे अंदर कमी है। नाउ वी आर एडिंग टू द प्रॉब्लम विद आवर थॉट्स, हम्म। विच इज नाउ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है। हम्म। बट एक दूसरा वे हो सकता है कि हाँ दिस इज अ प्रॉब्लम, हम्म। प्रॉब्लम्स हैपन इन लाइफ, एंड अब हम दूसरे थॉट सोच सकते हैं। अच्छा, मे बी दिस रिलेशनशिप वाज नॉट मेंट फॉर मी, इट वाज नॉट गुड फॉर मी, वाइब मैंने वाज इसमें से नॉट क्या मैचिंग। सीखा, हाँ ये क्यों वर्क नहीं किया, क्या हम्म। मैं बेटर कर सकती हूँ। सो दैट इज अनदर वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। सो द या। बेस्ट वे टू डील विद प्रॉब्लम्स इज टू टेल योर सेल्फ सबसे पहले कि ऑल इज वेल। हम्म। हाँ, खुद को काम थ्री डाउन इडियट्स का करना डायलॉग, ऑल इज है। वेल। My mentor says this, thank you. So it is like कि all is well, सबसे पहले यही कि I am calm, it is not the end of the world. कई या। बार हम अपने प्रॉब्लम से इतना उलझ जाते हैं, अब तो मेरी दुनिया खत्म। That is not happening. वो हम खुद को डरा रहे हैं कि हाँ दिस हैज हैपेंड। तो सबसे पहले खुद को काम करो, खुद को थोड़ा सा कंफर्ट करो, एंड देन थिंक बेटर थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, रिफ्लेक्ट ऑन इट इन अ कंस्ट्रक्टिंग वे। तो ताकि आपकी प्रॉब्लम फिर जितनी थी उतनी रहे, ना या। कि प्रॉब्लम के अराउंड अब एक इतनी बड़ी और प्रॉब्लम है। सो कमिंग टू 2 लास्ट क्वेश्चंस। बेसिकली जब मैंने ये पॉडकास्ट कर रही थी, मैंने देखा कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग कैसे है बेसिकली? मेरा कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग है? हाँ। कम्युनिकेट करके, आई थिंक आई एक्चुअली लव कम्युनिकेटिंग विद पीपल। सो हाउ डिड मुझे यू वर्क सो, मतलब इतना स्ट्रांग कैसे, मतलब ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, आपने कुछ प्रैक्टिस किया होगा ना? हाँ, तो पहले मैं कॉर्पोरेट में थी काफी साल तक, हम्म। थोड़ी मैंने ट्रेनिंग्स करी हैं, अभी मैं वर्कशॉप लेती हूँ। आई फील टू सम एक्सटेंट आई एम गिफ्टेड, हम्म। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज व्हेन यू आर assured and confident कि you are speaking the truth, what is हम्म। coming naturally to you, आप अपना सच बोल रहे हो, हम्म। ऑथेंटिकली बोल रहे हो, तब आपका कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, हम्म। तब आप डरते नहीं, है ना। दैट मेक्स योर कम्युनिकेशन बेटर, एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग टू पीपल, शेयरिंग योर ट्रू सेल्फ, हम्म। दैट हेल्प्स। एक और चीज, इफ एनीबडी वांट्स टू नो कि कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव करना है तो कैसे करना है, मिरर में खुद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू या। कुड प्रैक्टिस इट बाय लुकिंग इनटू द मिरर, प्रैक्टिस थिंग्स, प्रैक्टिस हेल्प्स। एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद पीपल होता है ना, बेस्ट थिंग है कि आप लोगों, मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे भी क्लाइंट्स लाती हूँ
तो मैं पहले 5 लोगों को सेल्स में बात करती हूँ कि कैसे इंटरैक्ट करना है। बेसिकली मेरे जो क्लाइंट्स है वो आउटबाउंड इनबाउंड के थ्रू आते हैं, पर सेल्स से नहीं आते। तो मैं जब उनसे बात करना होता है, जब मैं आउटबाउंड क्लाइंट से पिच करना होता है, तो मैं सेल्स कॉल से सीखती हूँ। ओके। रिजेक्शंस आते हैं, ठीक है, पर समझ में आता है कि कैसे बात करना है, क्योंकि आप यूट्यूब में भी इतना सारा वीडियो बना लो, आपको एक लोगों से इंटरेक्शन करना ही होगा। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। या सो आपने जब मेरे को शुरू में पॉडकास्ट में बोला कि मेरे एक मेंटर है, आप उनको अपना इंस्पिरेशनल पर्सन क्यों मानती हो, और उनका 2 रीजन बता सकती हो आपने उनसे क्या सीखा है? Thank you for this question. I'm very grateful because कोई भी usually when I'm speaking या talking to people मैं अपने mentor का जिक्र लाती ही हूँ because I'm very grateful to her. या So my mentor is Louise Hay and she's an American best-selling author. या And her book that I mentioned, You Can Heal Your Life, has helped millions of people worldwide to love themselves more and change their life. And I have other mentors from whom I got trained as a trainer and coach. My Ma, I call my mentor Ma, and my other mentor Donnie, and all other teachers who are workshop leaders and coaches like me. I'm very grateful to all of them. What I have learned from Louise and why I believe in her and her work so much is that loving yourself can change your life. यस किसी बाहर वाले पर डिपेंड नहीं होना है कि ये मेरी लाइफ चेंज करता है. यस Change is happening from within. अभी this is responsibility and this is also power. या Knowing कि जो भी situation हो रहा है मेरी लाइफ में, by changing my thoughts from within, I can help change the situation. मैं कोई victim नहीं हूँ कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकती हूँ इस situation से. By thinking different, positive, loving thoughts, I can come out of it. This has changed my life for the better. So I Priyanka, have the power within me. so you've given a great, people would love a lot of things from this podcast. You told us how to deal with it. You gave an example that is going to resonate with people. Storytelling examples बहुत important होते हैं. So thank you Priyanka for being our guest. Okay, Thank you. and I being love being here. sorry, you can just continue now. I was saying I love being here. Thanks for inviting me. And I am a writer and storyteller. तो Okay, मुझे just थोड़ा सा naturally आ जाती है stories. yeah, story is very important. People resonate with the story. People resonate with the examples basically. People who examples और story से resonate करते हैं. Thank Yeah, you. Very thank you. grateful to be here. Thank you, Priyanka, for being our guest. Thank you. Thanks, Pratyasha. Thanks, everybody. Yeah.